ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، ارے مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، میاں بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی، بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ یہ ہے پیغام دیا میرے اعلیٰ حضرت نے، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی۔ چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مذہب کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے جو مقام اسلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آج پوری دنیا تنہا جس مذہب پہ حملہ آور ہے اس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں، اور تنہا جو مذہب پوری دنیا کے ہر طبقے کے لوگوں کو حقوق دلانے کی بات کر رہا ہے اس مذہب کو بھی مذہب اسلام کہتے ہیں، اس مذہب کو بھی مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم الکتاب والحکمہ، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے علم سکھائے، تجھے حکمت سکھائے، تجھے بندگی سکھائے، تجھے طریقہ سکھائے، تجھے سلیقہ سکھائے، تجھے ماں کا رتبہ بتائے، تجھے باپ کا ادب سکھائے، معاشرے میں کیسے جینا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ایک کامیاب زندگی کا فارمولہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اے قرآن، نبی کے آنے کا مقصد قرآن نے کہا نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے علم اور حکمت سکھائے۔ کیوں؟ یزکیکم، تاکہ تمہارا دل اچھا ہو جائے، تمہاری نگاہیں پاکیزہ ہو جائے، تمہارے خیالات اچھے ہو جائے، یہ تمہارا بگڑا ہوا جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اچھا ہو جائے، تمہارے خیالات بہتر ہو جائے، سماج میں سب کو عزت ملے، لوگ سکھی رہے، سماج دکھ میں دکھی بن کر انسان زندگی نہ گزارے، بیٹا ماں باپ کا وفادار بنے، بھائی بھائی سے پیار کرنے والا بنے، پڑوسی پڑوسی سے محبت کرنے والا بنے، رشتہ دار رشتہ دار سے پیار کرنے والا بنے، چھوٹے چھوٹے بچے علم حاصل کرنے والے بنے، سماج پڑھا لکھا بنے۔ یہی وجہ ہے آمنہ کے لال نے نماز کا حکم بعد میں دیا، روزے کی بات بعد میں کی، حج و زکات کے تعلق سے اسلام نے گفتگو بعد میں کیا۔ سب سے پہلے اسلام کے میں جس بات کا اعلان ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ہو، ایمان لا چکے ہو تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا کام جو مسلمان مرد اور عورت کے لیے ہے علم حاصل کرنا، شکشا گرہن کرنا، تعلیم حاصل کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک پرکاش ہے، علم ایک روشنی ہے۔ اوت العلم درجات، سماج میں عزت پانے کے لیے دولت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے، خاندان نہیں علم کی ضرورت ہے، وراثت نہیں علم کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہی وجہ ہے اسلام نے کہا یاد رکھنا بچہ بالغ ہوگا تو نماز پڑھے گا، بچی بالغہ ہوگی تو نماز پڑھے گی، بچہ بالغ ہوگا تو روزہ رکھے گا، بچہ بڑا ہوگا صاحب نصاب ہوگا تو زکات دے گا، صاحب استطاعت ہوگا تو مسلمان حج کرے گا۔ مگر بات جب تعلیم کی آئی، بات جب شکشا کی آئی، بات جب ایجوکیشن کی آئی تو نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو
कब्र की मंजिल है। अब जरा ठहर के याद रखना, साहब बात जब पढ़ने की आई तो नबी ने ये नहीं कहा बच्चा 3 साल का होगा तो पढ़ेगा, बच्चा 4 साल का होगा तो पढ़ेगा, बच्चा 10 साल का होगा तो पढ़ेगा। बात जब इल्म की आई तो नबी ने कहा बच्चा तो माँ के पेट से ही पढ़ना शुरू कर देता है। या रसूल अल्लाह, आखिर वजह क्या है? आमिना के लाल ज़माने को समझा रहे हैं। मुफस्सिरीन इस हदीस में लिखते हैं बच्चा जब पढ़ने के लायक होता है तो 3 साल की उम्र के बाद किताबों को देखकर पढ़ता है, और बच्चा जब माँ की पेट में होता है तो माँ का किरदार देखकर पढ़ता है, माँ का कैरेक्टर देखकर पढ़ता है। जब माँ की गोद में आता है तो माँ बाप का किरदार देखकर पढ़ता है। इसलिए कि बच्चों की पहली दरसगाह स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, कॉलेज नहीं है, पहली दरसगाह माँ की गोद है। यही वजह है इस्लाम ने कहा वो इस्लाम की शहजादी हो, तुम चाहती हो तुम्हारी नस्लें बेहतर हो, तुम्हारी औलादें नेक हो, तुम्हारा खानदानी तसलसल अच्छा हो, तुम्हारे खानदान में आबिद हुसैन से लेकर जाहिद हुसैन जैसे शहजादे जन्म ले, तो तुम्हारी जरूरत यह है कि सबसे पहले माए पाकीज़ा हो जाए। जब माँ बाप पाकीज़ा होंगे तो इंशाअल्लाह औलादें भी पाकीज़ा होंगी, बेटे भी पाकीज़ा होंगे, बेटियां भी पाकीज़ा होंगी। मगर आज का मुसलमान कहता है मौलाना साहब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम चाहे जो करें। आज हमारी कौम की शहजादियां कहती है मौलाना आपके कहने पे हम जिंदगी गुजारेंगे, मौलाना साहब आपके कहने पे हमारी जिंदगी गुजरेगी, हमारी मर्जी दुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े, हमारी मर्जी हम इस्लामिक मॉडल जिंदगी गुजारे न गुजारे। हमारा नौजवान भी कहता है मौलाना साहब आपके कहने पे जिंदगी गुजारेंगे, कान हमारा है बाली पहने या हम हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे गले में चैन पहने या चैन उतारे, मौलवी साहब आपका क्या जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहता है ओ भारत की बेटियों, बड़ा तुझे अपने जिस्म पर गुरूर है, बड़ा तुझे अपने जिस्म पर नाज है। तो सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा अगर तुझे अपने जिस्म पर इतना कंट्रोल है तो सुल्तान रजा का एक पैगाम है, जितनी माएँ हैं चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, जितनी पढ़ी लिखी भारत की महिलाएं हैं, एक काम करो अल्लाह ताला तुझे मौका देता है। एक बच्चा दुनिया में आने से पहले 9 माह तेरे पेट में पलता है, जरा सा एक काम कर, जो बच्चा 9 माह मुसलसल तेरे पेट में रहता है, तुमने जो पढ़ा है जरा पेट में अपने बच्चे को भी पढ़ा दे, पढ़ा दे 1 से 100 तक, पढ़ा दे क से ज्ञा तक, पढ़ा दे अलिफ से या तक। माए कहेगी सुल्तान रजा कैसी बात कर रहा है, बच्चा 3 साल का होता है तो पढ़ता है, 16 साल का होता है मैट्रिक करता है, 25-30 साल में डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनता है, बच्चा माँ के पेट में कैसे पढ़ेगा। मैंने कहा हाँ एक दुनिया वालों याद रखना, जिन औरतों ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनकी औलादें पेट में क्या दुनिया में भी उनकी सोहबत में पढ़ाएंगी कि नहीं ये कोई नहीं जानता। मगर इराक की सरजमी पर सरदार गौसे आजम की मां ने कहा था मौला जिस्म मेरा है, मर्जी मेरे मुस्तफा की है, मर्जी मेरे मौला की है, मौला आंखें मेरी है मगर हया फातिमा ज़हरा की है, मौला बाजू मेरे हैं मगर किरदार सैयदा खातून ज़ैनब की है। तो जिस मां ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत फातिमा ज़हरा की है, उस मां ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जीलानी को इराक में जन्म बाद में दिया और पेट में ही 15 पारा का हाफिज इसलिए साहब याद रखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा ए मेरी कौम की माँ, तुम ताबीज के लिए भटक रही हो, तुम दर दर दुआओं के लिए भटक रही हो। बेटा शराबी हो गया है ताबीज लिख दीजिए, बेटा जुआरी हो गया है ताबीज लिख दीजिए, औलादे नाफरमान हो गई है। सुल्तान रजा अपनी माओ से सबसे पहले कहना चाहेगा ओ मेरी माओ भूल गई तुमने अच्छे शहजादे को जन्म क्यों नहीं दिया, या तुमने कभी अपने किरदार पे गौर किया है। सुल्तान रजा सिर्फ ये सोच
कर तकरीर नहीं करता कि लोग वाह वाह कहेंगे, मैं एक तहरीक के तहत तकरीर करता हूँ। इसलिए इस्लाम की माओ सबसे पहले तुम सुनो। आज हर बाप चाहता है मैं भले शराबी रहूं बेटा नेक हो जाए, मैं जुआ खेलूं बेटा हाफिज कुरान हो जाए, मैं समाज में गंदा बनकर रहूं मेरी औलादे नेक हो जाए। मेरी माओ ये तेरी भूल है, तुम फिल्म देखो औलादे अच्छी हो जाए, तुम मूवीज देखो बेटियां नेक हो जाए, तुम नाचो गाओ तुम्हारी औलादे नेक हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अरे तुझे पता नहीं है जिस माँ ने गौस को गौस बनाया, जिस बाप ने गौस को गौस बनाया, तुमने सिर्फ 11वीं का फातिहा याद रखा है मगर गौसे आजम की माँ के किरदार को भुला दिया है। गौसे आजम की वालिदा जब तुम्हें लेकर मौलवी साहब के पास गई थी और सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने 15 पारा पढ़कर सुनाया था तो मौलवी साहब ने हैरत भरी निगाहों से पूछा, शहजादे कहां से पढ़कर आए हो? क्या मदरसे से, क्या खानकाह से, क्या किसी इमाम की बारगाह से? तो मेरे गौस ने कहा, नहीं मौलवी साहब, न मैं पीर की बारगाह से पढ़कर आया हूँ, न मैं किसी आलिम की बारगाह से पढ़कर आया हूँ, न मैं मस्जिद के इमाम के पास से पढ़कर आया हूँ। कहा शहजादे तो 15 पारा किसने पढ़ाया? कहा मैं जब अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी, 9 माह में उसने 15 पारे तिलावत किए, मैंने उसे पेट में सुनकर याद कर लिया है। बताओ इस्लाम की शहजादियों, क्या तुमने भी कभी अपने बेटों को कुरान पढ़कर सुनाया है? क्या तुमने भी कभी अपनी बेटियों को कुरान पढ़कर सुनाया है? क्या तुमने भी कभी अपने शौहरों को कुरान पढ़कर सुनाया है? क्या ये हकीकत नहीं है उमर की बहन कुरान पढ़े तो उमर ईमान ले आते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है गौसे आजम की माँ कुरान पढ़े तो गौस हाफिज़े कुरान बन जाते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है गरीब नवाज की माँ कुरान पढ़ती है तो बेटा पेट में ही कलमा पढ़ने वाला मुजीमुद्दीन हो जाता है? सुल्तान रजा पूछना चाहता है कब तेरे मुसल्ले बिछेंगे, कब तू कुरान की तिलावत करेगी? सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है वो इस्लाम की पाकीज़ा बहुओं और शहजादियों, मैं कभी भोंडे जुमले इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए याद रखना तुम्हें शहजादी इसलिए कहता हूँ इस्लाम ने बड़ा रुतबा दिया है तुझे। कुरान में औरतों के नाम की सूरत नाज़िल फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें टेढ़ी बिजली से पैदा की गई है, ज्यादा सीधी करोगे टूट जाएंगी, इसलिए उन्हें जरा संभाल करके रखना। उनके बारे में अल्लाह के नबी ने वसीयत फरमाई है, इसलिए गौर से सुनना। जब तुम मैका से रुखसत होकर चलती है तेरा बाप तुझे पहनने के लिए जेवर भी देता है, तेरा बाप तुझे पहनने के लिए लिबास भी देता है, तेरा बाप तुझे पहनने के लिए कपड़े भी देता है, तेरा बाप कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन देता है, तेरा बाप पानी ठंडा पीने के लिए फ्रीज देता है, तेरा बाप हर चीज देता है। लेकिन जब तू चलती है रुखसत होते वक्त तो तेरा बाप साथ में कुरान भी देता है और जानेमाज भी देता है। मैं इस्लाम की उन बहुओं और शहजादियों से पूछना चाहूंगा, बताओ जरा ईमानदारी से, तेरे बाप ने जेवरात दिए उसे तूने पहना, तेरे बाप ने लिबास दिए उसे तूने पहना, तेरे बाप ने जितने सामान दिए सबका इस्तेमाल तूने किया, लेकिन बता दुल्हन बनने के बाद से लेकर आज तक तूने बाप के दिए हुए जानेमाज को कितनी बार बिछाया है? बाप के दिए हुए कुरान की तूने कितनी बार तिलावत की है? बता क्या तेरे बाप ने इसीलिए कुरान दिया था कुरान अलमीरे में रखा रहे? नहीं, इस्लाम की शहजादियों, आज के इस जलसे से तुझे अहद करके जाना है कि तुम्हारी सुबह की शुरुआत किसी सीरियल और प्रोग्राम से नहीं होगी, बल्कि तेरी सुबह की शुरुआत नमाज से होगी और कुरान की तिलावत से होगी। एक बेटा पढ़ता है तो एक जिंदगी संवरती है और एक बेटी पढ़ती है तो मैका भी संवर जाता है, ससुराल भी संवर जाता है। कितने लोग इस बात से मुत्तफिक है कि हमारे घर में ऐसा माहौल होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग मुत्तफिक हैं? सारे लोग माशाअल्लाह। इस तकरीर को सुनकर जाकर जरूर बताइएगा, आओ मेरी कौम के शहजादों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ को राजी किए बगैर जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती, माँ को कभी नाराज
न करना। शब बरअत की रात आई और चली गई, शब कद्र की रात आने वाली है। याद रखना बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है। तेरा रब तुझसे पूछता है मेरे बंदे मांग, बख्शिश चाहिए ले ले, जन्नत चाहिए ले ले, मग़फ़िरत चाहिए ले ले। मगर रब कहता है महबूब कह दीजिए सबको बख्श दूंगा मगर माँ बाप के नाफरमान को नहीं बख्शूंगा। सबको बख्श दूंगा मगर शराबी को नहीं बख्शूंगा। महबूब कह दीजिए सबको बख्श दूंगा मगर जानी को नहीं बख्शूंगा। महबूब कह दीजिए अब जरा ठहरो ठहरो, आज सुल्तान रज़ा तुझे कहना चाहेगा। आज हमारे आबिद भाई और उनके घर वालों ने बड़ी आलीशान जलसा कराया, बड़ी शानदार बिरयानी बनाई। माशाअल्लाह बड़े नेक है जो मरने के बाद माँ की इतनी खिदमत कर रहे हैं, तो जब माँ बाप जिंदा होंगे तो कितनी खिदमत करते होंगे। वाह वाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह की वालदा है, वालिद साहब भी है, अरे वालिद साहब है ना, और वालदा अच्छा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुनिए सुनिए, माशाअल्लाह इनके वालिद है, वालदा दुनिया में नहीं है। माशाअल्लाह अहले खानदान के नाम से जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। जरा थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोल दें या हबीब अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा, ए मेरी कौम के शहजादों, जरा याद रखना, खूब याद रखना, शब बरअत की रात आएगी चली जाएगी, शब कद्र की रात आने वाली है। जानते हैं हमारी पोजीशन क्या है? हम बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद साहब 1000 गांव के लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन माँ जब जिंदा हो, बुरा मत मानिएगा, माँ जिंदा हो, अस्पताल में पड़ी हो, तो बेटा इलाज कराने को भी तैयार नहीं। अच्छा नजराना लेकर आई है, दादी है। चलिए अल्लाह सलामत रखे। सबके लिए दुआ कर दीजिए, सबके लिए दुआ कर दीजिए और इनाम से बैठिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी में बरकतें अता फरमाए, इनकी मोहब्बत। अब सुनिए मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू है ना, अच्छा जाके इंशाअल्लाह जाइएगा। आपका बेटा मदीना गया था और मैं माँ को लेकर गया था। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फकीर दुआ करेगा, इंशाअल्लाह इरादा रखिए, जरूर रखिए। और अगर फकीर चला गया फिर जिंदगी में आप नहीं भी गई तो आपकी तरफ से एक उम्रा फकीर करेगा इंशाअल्लाह, याद रखिए इंशाअल्लाह। इन माओं को नाराज न करना। सुनो अब यहाँ से गुफ्तगू मेरी थोड़ी देर, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन बुरा न मानना। रात की तन्हाई में सोचना, रात की तन्हाई में सोचना, रात की तन्हाई में सोचना। साहब माँ दुनिया में जिंदा हो तो हम उससे ईद में एक अच्छा कपड़ा नहीं पहनाते और मरने के बाद राइमंड कंपनी का कफन देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या यही मोहब्बत का म्यार है? क्या यही हमारी जिंदगी का म्यार है? आओ पहले माँ की फजीलत समझो। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, आका की सवारी मस्जिद अक्सा में पहुंची है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया आका की ताजीम के लिए खड़े हैं। किसकी ताजीम के लिए? नबी की ताजीम के लिए। अब बुरा न मानना, आज हम अपने इमामों की कदर नहीं करते, मगर पूछो आदम से इमाम की ताजीम क्या है, पूछो इब्राहिम से इमाम की ताजीम क्या है, पूछो इस्माइल से इमाम की ताजीम क्या है। आदम ने ये नहीं कहा आने वाला मेरा बेटा आ रहा है, इब्राहिम ने ये नहीं कहा आने वाला मेरी दुआ बनकर आ रहा है, बल्कि आदम ने ये कहा आने वाला मेरा बेटा जरूर है मगर आज मैं मुक्तदी बनकर आया हूँ, मेरा शहजादा कौम का इमाम बनकर के आया है। इसलिए आदम भी ताजीम के लिए खड़े हैं। आज के बाद अगर आप कहीं होटल में बैठे हैं, मकान दुकान में बैठे हैं, आपकी मस्जिद का इमाम है और ये उलमा पूरी कौम के इमाम है। जब ये आपको मिल जाए इनकी ताजीम कीजिए, मौला आपकी इज्जत को बढ़ा देगा, मौला आपके रुतबे को बढ़ा देगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, जिस नबी की ताजीम के लिए सारे अंबिया खड़े हैं,
आओ जरा उस नबी की जिंदगी सुनो, आओ जरा उस नबी की सीरत सुनो। मस्जिद नबी शरीफ है, आका सहाबा की झुमट में बैठे हैं, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हैं, दीन की बात चल रही है। इतने में मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे से हजरत मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे से एक औरत दाखिल हुई। अल्लाह अल्लाह, जो ही मुस्तफा जाने रहमत की नजर पड़ी है, आका करीम की नजर पड़ी, फौरन आमिना के लाल उस औरत की ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, जब सहाबा खड़े हुए, सहाबा अर्ज़गुज़ार हुए, फिदा का अभी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक औरत है जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है, जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा रसूल खड़ा है। आका सिर्फ खड़े नहीं हुए, जब वो औरत करीब आई तो आका ने अपने कांधे से नूरी चादर को उतारा और जमीन पर बिछा दिया। ओ आपके बैठने की जगह ये है, यहाँ बैठ जाए। अल्लाह अल्लाह, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है। आका जी, सारी दुनिया, सारे अंबिया और रसूल आपकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, मगर ये कौन मुकद्दस हस्ती है, ये कौन पाकीज़ा हस्ती है जिनके लिए मेरा पैगंबर खड़ा है। कौनैन के ताजदार मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं सहाबा, क्या तुम अपनी मौत की ताज़ीम नहीं करते? तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा हो गया है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ओ मेरी कौम के शहजादों, आज तुझे जलसे याद है, आज तुझे जुलूस याद है, आज तुझे नारे याद है, आज तुझे कलमा याद है, लेकिन सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, नबी की इस सुन्नत को कभी याद करोगे? नबी की इस सीरत को कभी याद करोगे? क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ का बिस्तर लगाया है? क्या तुमने भी कभी अपने बाप के लिए चादरें बिछाई है? बुरा ना मानना, मज़ार पर 1 करोड़ चादरें चढ़ाने वालों, कभी तुमने माओ के बदन पे भी सोने के बाद चादरें चढ़ाई है? क्या तुमने कभी बाप के जिस्म पर भी चादरें चढ़ाई है? अरे ठंडी का मौसम गुजर जाता है, कभी तू सोचता है कि जरा माँ के लिए भी एक चादर खरीद दे? बता, ठंडी का मौसम गुजर जाता है, क्या तू सोचता है कि बाप के लिए भी बेहतरीन एक कंबल खरीद दे? आला हज़रत सरकार ने लिखा, मज़ार शरीफ पर 1 चादर चढ़ाओ, जब तक बदलने के लायक न हो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर आज हम एक मज़ार पर 1 करोड़ चादरें चढ़ाएंगे। जब 1 करोड़ चादरें चढ़ाएंगे तो कौम में आलिम कम और जाहिल मजाजिर ज्यादा पैदा होंगे। इसलिए सुल्तान रज़ा गुजारिश करेगा, मत चढ़ाओ 1 करोड़ चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ, 450 बचा कर लाओ और अपने बस्ती के मदरसे में जाओ और कहो, हाफिज साहब, गरीब नवाज की तुरबत पे 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाई थी, ये 450 रुपए लीजिए और गरीब नवाज के नाम पे किसी गरीब बच्चे के लिए कापी, किताब और कलम खरीद लीजिए। कसम खुदा की, तुम्हारी चादर से जितने गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा गरीब बच्चों की तालीम से खुश होंगे। याद रखिएगा, मेरी तकरीर एक तहरीक है, चाहे बरेली शरीफ हो, मुरादाबाद हो, मुबारकपुर हो, फकीर आया है। ये हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला की जरा नवाजी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ए मेरी कौम के शहजादों, आओ जरा सुनो सुनो, क्या ये हकीकत नहीं है? हम कुर्सी पे बैठे हैं, माँ नीचे बैठ जाती है, हम चारपाई पे बैठते हैं, माँ नीचे बैठ जाती है, हम अपने बिजनेसमैन की गद्दी पे बैठते हैं, बाप चपरासी की तरफ बाहर खड़ा रहता है। क्या ये हकीकत नहीं है? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, मत बनो माँ बाप के बेअदब। आज इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तुम चाहे स्कूल में पढ़ा रहे हो, तुम चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तुम चाहे इमामे वक्त हो, तुम चाहे मुफ्ती वक्त हो, तुम चाहे पीरे वक्त हो, याद रखना, तुम चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जीनियस हो, दुनिया में कोई
ऐसी दौलत और तालीम नहीं है जो बच्चों को माँ बाप से ऊंचा कर दे, माँ बाप से बड़ा कर दे। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कितनी दौलत है तेरे पास, क्या मेरे नबी से भी ज्यादा तू अमीर है? कितनी इज्जत है तेरे पास, क्या आमिना के लाल से भी ज्यादा इज्जत है? कितना बड़ा खानदान है तेरा, क्या नबी से भी आला खानदान है तेरा? न तेरे पास नबी की तरह दौलत है, न तेरे पास नबी से ज्यादा शोहरत है, न तेरे पास नबी से ज्यादा इल्म है, न तेरे पास नबी से ज्यादा इज्जत है। जब तेरा और मेरा नबी मस्जिद नबवी में माँ की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, तो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। तुम घर जाओगे, तुम घर में बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, बगल में तेरे बच्चे बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ आ जाए, इतने में तेरा बूढ़ा बाप आ जाए, कसम खुदा की फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे, अरे कल तक तो माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? कहना पगली कल तक नहीं जानता था, आज मैं आबिद बाबू के घर जलसे में गया था, मौलवी साहब आए थे, आला हजरत के दर का कुत्ता आया था, उसने हमें बताया है। अरे सुनो, तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है और 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना भी सिखाया है, जिसने मेरे मुंह में रोटियां भी डाली है, जिस माँ ने मेरे मुंह में नेवाला डाला है, जिस